I never thought I'd be making this kind of a video. Whenever you see me in the courts or the court videos or other legal videos, you never see me decked up like this. Today, entire vibe is different, and the reason is the video is very different, the topic is very different, but essential one. So here we'll be talking about those 10 pointers which you should remember as teenagers, and you often neglect or you often tend to understand incorrectly. तो यहाँ हम वो 10 बातें करेंगे जो बहुत ज़रूरी है. मैंने सोचा कि क्योंकि हम उन लोगों से बहुत जुड़ रहे हैं जो 13 से 19, 20 या 21 साल तक हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे इंसाइट्स शेयर करे जाएं जो कि हो फ्रॉम द रीसेंट लाइफ दैट आई हैव लिव्ड, आई मीन द रीसेंट डेकेड. सिंस आई एम 27 years of age, I will be sharing 10 pointers from my life which you should remember as teenagers if you wish to grow ahead, and this is only based on my understanding, on the basis of the experiences that I have had. Other people may have different experiences, but I am sure this is going to be a fruitful, learning and motivational and enriching and whatnot video for you. Let's get started. Let's get started with the very first pointer, which is confusing teenage with adulthood. It happened with me, it happens with all of us, and this is deadly. Why deadly? So, when you confuse your teenage years, that means when you start from 13, 14, 15, 16, you're in 10th standard, 11th standard, you come to college, you confuse it with adulthood. You think that this is the time for getting the much needed, the much desired independence. Let me take my decisions on my own. Let me not have consultation with anybody else on important things in life as well. Let me decide if I want relationship with a boy at this point or a girl at this point or anything. Let me decide if I want to get into a romantic relationship. Let me decide what to eat. Let me decide when to come back home. If I want, I can come back home at 2 a.m. also. My friends' parents are allowing it. Why are you not doing it? Incorrect. I am requesting you all. Your life will be simpler. Please depend upon your parents. Involve them, or elders, or guardians, or people around you with from whom you get those good vibes to share things with. Involve them in your decisions, in your major decisions of life. See, you have the entire life left behind for you if you want to come back home at 2 a.m. or something. Right now, when you don't know how to have control over your feelings, have complete control over your money matters, etc., please let them be involved. It will make your life simpler only. This is a heartfelt number one advice from me, because कई बार ना टीनेज में, और बिकॉज पेरेंटल प्रेशर या गार्जियन प्रेशर या बड़ों के प्रेशर में भी हमें ऐसा लगता है कि ये लोग हमें वो चीज़ें करने ही नहीं देना चाहते जो मुझे करनी है. ये लोग मुझे उन दोस्तों से मिलने ही नहीं देना चाहते जिनसे मुझे मिलना है. मुझे जो क्लासेस में जाना है मुझे वहाँ नहीं जाने दे रहे. मेरे फ्रेंड्स सारे वहाँ आते, एंड नाउ दे वांट मी टू गो टू सम अदर ट्यूशन सेंटर. नाउ दे वांट मी टू अटेंड सम अदर स्कूल. व्हाई? The reason is, उनके लिए ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, फ्रेंडशिप्स, पीयर प्रेशर्स, आपकी हाउ कूल यूर लुकिंग इन योर सर्कल, वो मैटर नहीं करता है. दे आर सीइंग, दे आर एक्चुअली हैविंग अ विजन फॉर योर फ्यूचर better than you at this point. I am not saying that you do not have a vision. There are always exceptions, but I am talking about the common mistakes that we often do as teenagers and till the age of 19, 20 years. So if you involve them in your decisions, if you request them, let me also be involved. I am talking from the perspective of Indian parents as well. तो आपको उन्हें बोलना पड़ेगा, प्लीज़ मेरी बात भी सुनो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हो कुछ भी गलत, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो. मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे इस फ्रेंड के पार्टी में जाना है, मुझे ये मूवी देखने के लिए जाना है. लेट्स सी हाउ वी कैन कम टू अ मिडिल ग्राउंड, हाउ वी कैन हैव अ सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स. तो वो भी आपकी बात सुनेंगे. बट एकदम से सब बागी हो जाओगे तो गलत राह पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. गलत डिसीजन हो जाएंगे, फिर कहोगे इतना गलत हो गया, मुझे नहीं पता था कि रॉन्ग फ्रेंडशिप्स हो जाएंगी, मुझे नहीं पता था कि मेरा जनरल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ गलत हो जाएगा. डोंट डू दैट. सेकेंड थिंग, और जी बहुत होता है, आई एम नॉट परफेक्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ. oh my god, I have these breakouts on my skin, my hair, वो फैशन चलता रहता है ना, तो my hair are not straight, my hair are not curly enough, my hair are not wavy enough. मेरी पेरेंट्स मुझे अभी अपने आईब्रोज स्टाइल करना, थ्रेडिंग एंड ऑल कराना अलाउ नहीं करते हैं. आई नीड टू बी perfectly waxed at all the times when I'm going to school. Please,
ये जो जितना भी सारा आपके पास पीयर प्रेशर है ना, जो लोग बोल रहे हैं, योर फ्रेंड्स आर सेइंग कि माय गॉड हाउ बैड यू आर लुकिंग, हाउ टैकी यू आर लुकिंग, आई थिंक यू कुड हैव डन बेटर विद दिस आउटफिट, आई थिंक आप स्कूल में ऐसे वाला हेयर स्टाइल बना के आते तो अच्छा रहता. प्लीज़, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर दैम. आई टोटली अंडरस्टैंड वॉट यूर गोइंग थ्रू. मेरे को भी बहुत साल नहीं हुए वहाँ से निकले, 10 साल का पुराना याद रहता है, 10-15 साल का पुराना तो मुझे याद है. बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ से निकलना, बहुत मुश्किल होता है उन्हें जवाब देना. मन करता है जैसा वो कर रहे हैं वैसा मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी क्यों ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ. वाई कांट माई पेरेंट्स गिव मी दिस न्यू ड्रेस एवरी डे, वाई कांट दे गिव मी अ ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन, वाई कांट दे टेक मी टू दीज प्लेसेज दैट दे आर गोइंग टू. बट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ ऑल मोमेंटरी. और जितना इसे इग्नोर कर लोगे ना, जितना इससे ऊपर आना सीख जाओगे, इग्नोर मतलब अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में उस पर ध्यान दो. इसलिए कुछ चीज़ मत करो, कुछ भी मत करो इसलिए क्योंकि कोई दूसरा कह रहा है, या फिर क्योंकि इससे मेरी कोई इमेज बिल्ड होने वाली है, या फिर इससे मेरे कोई फ्रेंड्स बन जाएंगे. अगर इस रीज़न की वजह से फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो भी इस एज में, उन फ्रेंड्स को मत ही बनाओ. मेरी बात मानो, ऐसे दोस्त होते हैं जो उस समय से लेके आज के समय तक, एटलीस्ट 27 साल तक आपके साथ रहते हैं, स्कूल कॉलेज के वो दोस्त, और उनको आपकी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है. जिसे पड़ रहा है उनके लिए कभी कभी ऐसी खुश करने के लिए प्लीजिंग चीज़ें कर भी लोगे तो वो उस समय के लिए आपके फ्रेंड बन जाएंगे, उस समय के लिए आपके सर्कल का पार्ट बन जाएंगे, बट देन नॉट गोइंग टू स्टे. मार्क माई वर्ड्स, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो आई एम नॉट परफेक्ट और गुड इनफ नहीं करना है. बॉडी इमेज पे भी नहीं जाना है. मेरा ये साइड फ्लैब निकल रहा है, माई आर्म फैट, ऑल ऑफ दैट, नो प्लीज़, अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं, क्या कभी नहीं. हेल्दी होने के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं. यू वॉन्ट टू बी अ फिट पर्सन, प्लीज़ डू दैट, बट अगेन नॉट टू इम्प्रेस अदर्स. और अपने आप को प्लीज़ वो ज़ीरो डाउन करना बंद करो कि मैं तो इतनी बेकार लगती हूँ, आई डोंट हैव अ गुड फेस, गुड स्माइल और समथिंग. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट. थर्ड, many of you think that my career has to be sorted right now, I need to have plans for the next 50 years of my life. गलत है तो बहुत अच्छी बात है. ऐसा लगता है कि बदल जाएंगे, श्योर नहीं है, कोई बात नहीं. नहीं है, कोई बात नहीं. नहीं भी होता है सॉर्टेड तो बाद में पता लग जाता है. कहीं ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें अभी ही सॉर्टेड होनी ज़रूरी है. टाइम है, सब समय के साथ सब कुछ बदलता है. समय के साथ बहुत चीज़ें आपके सामने आती हैं, बहुत करियर ऑप्शंस आते हैं, बहुत नई चीज़ें आप सीखते हैं, बहुत नए लोगों से आप मिलते हैं. तो डोंट वरी, योर लाइफ, मतलब आपके जो प्लान्स हैं अगले 10-20 साल के, वो सॉर्ट हो जाएंगे. और सबसे बेहतर इसमें से ये रहता है कि आप लोगों से बात करो, समझो कि किस तरह के से मुझे करियर चूज़ करना चाहिए. अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो वो अच्छा वाला करो, ताकि आप हर रोज़ सीखो, समझो चीज़ों को, और ना कि अपने माइंड में को डस्टबिन बना लो बहुत सारी नेगेटिव और चीज़ें भर भर के. फोर्थ थिंग, एंड दिस इज अ लिटिल सेंसिटिव, वी ऑफन थिंक दैट रिलीजन इज़ अनकूल. तो अगर हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते भी होते हैं, अगर हम गॉड में फेथ करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे घर पे शुरू से सिखाई जाती है, हम उसे करना या लोगों के सामने दिखाना बंद कर देते हैं. और मेरा रिलीजन से मतलब सिर्फ अंधविश्वास वाली चीज़ें या सिर्फ रिचुअल्स नहीं है. ऑफकोर्स रिचुअल्स भी इंक्लूडेड है और हर रिचुअल अंधविश्वास भी नहीं है. बट मेरा मतलब है कि मानना दैट देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, रिस्पेक्ट करना जो भी आपके ट्रेडिशंस है, जो भी आपका कल्चर है, आपके रिलीजन के अराउंड घूमता हुआ, आपके देश के अराउंड घूमता हुआ, आपके सिटी के अराउंड घूमता हुआ. हम लोग सोचते हैं कि अगर हम उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो बहुत अनुकूल होगा, या फिर हम ट्रेडिशनल आइडियाज़ ऑफ लिविंग को अपनाएंगे तो वो बहुत अनुकूल होगा. नो, अभी जब बड़े होगे तो थोड़े दिन बाद, जब मतलब ये टीनेज वाले फेज से निकलोगे तो थोड़े दिन बाद ये लगने लगेगा अरे यार दिस वाज द कूलेस्ट थिंग टू डू, एंड पीपल वर डूइंग इट, दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर इट एज वेल. वो अलग बात है. अगर आप बिलीव ही नहीं करते हैं असल में, ठीक है, ओके, दैट्स अनदर क्वेश्चन, दैट मे बी अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो. बट अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास रखते हैं, फिर भी आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों के सामने पाते हैं कि हाँ मेरा इस चीज़ में विश्वास है, then that's wrong. Fifth thing, savings are not for me, believing this. तो सेविंग्स कैसे करें? हम तो कमाते नहीं हैं, हम लोग तो स्कूल में हैं. सो पॉकेट मनी मिलती है. Maybe if you'll ask your parents that I need this extra 500 rupees every week, or maybe let's say extra 100 rupees every week, या जितना भी आप कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से,
तो क्या वो मना करेंगे? एंड इफ़ यू will tell them that I will save from this, maybe you can have some gullak, you can have a piggy bank where you add things, and having a bank account for your own self, uh, under the supervision of your parents, where you can deposit all this money, have a FD, whatever you're getting from your grandparents, from your parents, those little amounts, usko bhi aap us FD mein dalo, savings mein dalo, and later in life this is going to give you a certain kind of confidence that, you know, I am not starting with zero as of now. I have this certain sum of money with me. If I want to do some things in life on my own, let's assume you want to start a small business. You can do that. Let's assume you want to be a content creator. Maybe you can buy a camera, you can buy a good phone from this money, and it's very important to be financially literate at this age. So बहुत से लोगों को लगता है कि अभी मुझे FDs, बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, इनके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है. बट नो, व्हेन यू आर इन दिस एज ग्रुप, व्हेन यू स्टेप इनटू द ईयर 13, स्टार्ट आस्किंग योर पेरेंट्स क्वेश्चंस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ग्रो करते हो, किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स कैसे करी जाती हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या है, शेयर्स क्या है. इनको थोड़ा स्टडी करो, इनके बारे में जानो. दिन का अपना थोड़ा सा टाइम ये करने के लिए रखो, या हफ्ते में एक दिन आप ये फाइनेंशियल लिटरेसी गेन करने के लिए रखो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डू दिस एट दिस एज, you're definitely going to have an edge in life later. तो ये मिस्टेक मत करना, सेविंग्स ना करने की या फाइनेंशियली लिटरेट ना होने की अपने टीनेज में. करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. अगले आने वाले 20 साल तक याद करोगे कि मैंने ये किया था और मेरे अंदर इससे कितना कॉन्फिडेंस आया था. सिक्स्थ थिंग, लव इंटरेस्ट 13 और उससे बड़े ये जो एज ग्रुप होता है 13 से 19-20 साल का, इसमें लव इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यू गेट अट्रैक्टेड टू पीपल. इट्स नॉट रॉन्ग टू गेट अट्रैक्टेड टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब दोनों एक या जो भी. बट don't get attracted again for wrong reasons. Try to convince yourself that even if I have some romantic interest in this person, let me hold it on for a while. Even if I want to tell it to this person, let me do that with a lot of dignity. Let me again involve my parents or my elder sister, my elder brother, or some person whom I can confide into this matter, and let me tell them, confess to them about my feelings. Ki bhaiya didi, this is how I feel at this age. There's a boy in my class about whom I'm feeling this certain kind of way. I have butterflies in my stomach about him. एंड मुझे अब फिर क्या करना चाहिए, या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए. वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में. और इफ़ दैट विल हैव टू स्टे विद यू, दैट इंटरेस्ट, दैट पर्सन, दैट बॉय, दैट गर्ल, ही और शी विल, दे विल. ओके, तो डोंट वरी. ऐसे शादी की प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी गलत हो जाती है. ये भी एक मेजर डिसीजन होता है. प्लीज़, अगर आप अपने घर में कई बार स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो कोई भी हो, कोई सीनियर हो, किसी को आप बताना चाहो बताओगे, तो देर आर हाई चांसेस कि वो आपको बहुत सही एडवाइस देंगे. और कई बार तो हमारे पास ऐसे टीचर्स भी होते हैं, जिनके पास ऐसे टीचर्स हैं, वो मुझे बताना कि ऐसे कभी कोई एडवाइस लेने के लिए कोई टीचर आपके पास एग्जिस्ट करता है, वो किस तरह का है, कितना अच्छा लगता है उनसे बात करके. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. तो उनसे भी शेयर कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट फ्यू थिंग्स स्ट्रेट. There is no harm, there is nothing bad in liking someone, in being attracted to somebody for the qualities that they possess. उसी वजह से आप attract होते हो. Second, not every kind of attraction is equal to love. Okay, love happens, grows, nurtures itself over a period of time. The seventh point, which is controversial but important, having sexual literacy. And by this I mean that a lot of people get addicted to habits such as watching pornographic videos, content, sexually explicit content, and even into excessive masturbation. Both these things are wrong. अभी मुझे इस पे चिट्ठियाँ लिखनी है, आपको समझाना है, तो मैं आपको 10 दिन तक समझा सकती हूँ. बट अगर मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट आ रहा है ये वीडियो देख के इतनी देर से, तो प्लीज़ समझ जाओ, अभी समय नहीं है इस चीज़ का.
साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है, बट अभी मैं आपको ऐसे तो समझा नहीं पाऊंगी ना। ओ माई गॉड, ओके, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस पोर्नोग्राफिक कंटेंट वंस इन लेट्स से 30 days, दैट्स फाइन। मेरे पास ऐसी कोई रिसर्च और कुछ नहीं है, आई एम नॉट डॉक्टर हियर, ओके। मैं कोई इस चीज़ में मेरी कैसे क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है मेडिकल इस बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं लोगों से बात करके बता रही हूँ कि इफ़ यू गेट टू मच इन्वॉल्व इन टू प्लीजिंग योर सेल्फ सेक्शुअली और watching pornographic content, it's bad for your confidence, it's bad for your health, it's bad for your mental stability in the long run, it's bad for your sexual health as well in the long run. So do not get too much involved at this age. I'd say do not get involved. Try to control yourself, try to calm your emotions, try to be involved in other activities that are beneficial for you, for your growth, for your health, etc. इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज़ इग्नोरिंग और थिंकिंग दैट आई डू नॉट नीड टू हैव अ फिटनेस और अ हेल्थ रेजीम और अ रूटीन। तो आप सोचते हैं मैं कितने भी बजे सोऊं रात को, मुझे रात तक पढ़ाई करनी होती है, मुझे स्कूल या कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं या ना करूं, फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम एजुकेटिंग माई सेल्फ। अभी तो मैं अपने स्कूल में अच्छे नंबर ले आऊँ, अभी तो बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आऊँ, अभी तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, अच्छे मार्क्स ले आऊँ। कैसे सुबह सुबह उठ के मेरे को कॉलेज जाना होता है, इतनी ठंड होती है, स्कूल जाना होता है, ठंड लगती है, हाउ डू आई एक्सरसाइज, और मैं करूँ क्या, मुझे थोड़ी ना आता है अभी एक्सरसाइज करना, फिर मैं कुछ गलत वलत कर लूँगा, फिर आप बोलोगे कि गलत एक्सरसाइज कर ली, ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, ये नहीं करना है। दिस इज़ द राइट एज टू हैव अ फिटनेस रिजीम। वैसे तो आपके पेरेंट्स से हेल्प लो इस बारे में भी, मतलब एल्डर्स, जब भी मैं पेरेंट्स कहती हूँ मेरा मतलब है एल्डर्स या कोई भी गाइड, कोच, जो भी, या टीचर। अगर कोई आपको ये चीज़ पैदा होते से भी कराता है ना, मतलब एक रेजीम रखवाता है आपको, सुपर, कोई गलत बात नहीं है। पर 13-14 साल के अब हो गए हो या 19-20 तक की एज तक हो, तो आप समझ सकते हो कि एक अच्छा रेजीम, एक अच्छा रूटीन क्या होता है। प्लीज़ उसे फॉलो करो, प्लीज़ अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो। जितना जल्दी करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास पढ़ाई के साथ साथ ये भी होगा तो आपको इतना एज मिलेगा ना। और देखो, सिर्फ पढ़ाई होगी और हेल्थ नहीं होगी तो कुछ मतलब नहीं है, ज़ीरो, कुछ हाथ नहीं आने वाला, ठीक है। बाद में वही ठीक करते रह जाओगे सालों साल। तो प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक इफ़ यू आर इन योर टीन्स और इवन एट टिल द एज ऑफ 20 years. Ninth thing, ninth thing is about cultivating a hobby. तो हम लोग को अगेन लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, द पर्सन दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एट स्कूल इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, ओ माई गॉड, आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एंड आई हैव ऑल्सो सीन instances where people get involved, children get involved with wrong kind of people, and बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, they get cheated upon। उनको जब समझ भी नहीं आता है कि चीटिंग का मतलब क्या होता है, उनकी बहुत सारी प्राइवेट बातें, प्राइवेट चैट्स, प्राइवेट इमेजेस, प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाती है, दूसरे लोग देख लेते हैं। इट बिकम्स अ मैटर ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर देम। जबकि हाँ, फिर अगेन ये एक दूसरा डिस्कशन का मुद्दा है, इस पे हमें विक्टिम शेमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिसके साथ ये हुआ है वो डेफिनेटली एक विक्टिम है, और ज़रूर मैं कहूँगी उसे सावधान तो रहना चाहिए था, उसे सोच समझ के तो ये सब करना चाहिए था। बट अगेन मैंने बोला ना कि आपके पास समझ नहीं होती है कि सही इंसान है, गलत इंसान है, ये मेरे साथ ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उन चीज़ों से थोड़ा बचो। और इनसे बचने के लिए वही 9th पॉइंट पे वापस आ जाता है, कल्टिवेट अ हॉबी। जब एक हॉबी होगी, लेट्स से यू हैव सिंगिंग एज योर हॉबी, और आप रोज म्यूजिक क्लासेस भी जाते हो स्कूल के बाद, आप उसे कल्टिवेट कर रहे हो, यू वांट कि मेरे को म्यूजिक में भी एक डिग्री आ जाए, हमें मैं स्नातक हो जाऊं, तो आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा, आप उस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप उल्टी सीधी जगह भटकोगे नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बात पहले भी सही थी, ये बात जब मैं 13 साल की थी, 17 साल की थी, 19 साल की थी, तब भी सही थी। आज मैं 27 साल की हूँ, ये बात आज भी सही है। मैंने भी पढ़ाई की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्कूल गई, कॉलेज गई, मास्टर्स किया, और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ पिछले कई सालों से। तो बहुत सारे और भी काम किए साथ साथ। तो आई एम सेइंग इट ड्यू टू माई एक्सपीरियंस विद सर्टेन थिंग्स। तो प्लीज़ बात मानो, एक हॉबी को रखो, अपनी हॉबी को कभी छोड़ो मत। लोग इतने अच्छे डांसर्स होते हैं, बच्चे इतने अच्छे डांसर्स होते हैं और छोड़ देते हैं फॉर सम रीज़न। किसी को पोइट्री करना बहुत अच्छा लगता है और वो उसे कल्टिवेट नहीं करते हैं, किसी को ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्यों करते हो ऐसा?
प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो। हेल्थ और हॉबी, इन दोनों चीज़ों के लिए टाइम निकालोगे कभी पानी में नहीं जाएगा। और अगर इन दोनों चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो डेफिनेटली जिस एज पे पहुंचने वाले थे उससे पीछे 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 जाते जा रहे हो। ऐसा मत सोचो कि अरे मैं ये नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मैं करियर में तो अपना ये बना रहा हूँ ना अपना, तो मैं तो आगे ही बढ़ रहा हूँ ना। नहीं बढ़ रहे भाई, आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे जा रहे हो। प्लीज़ टू मैच अप विद द पेस ऑफ लाइफ अपनी अच्छाइयाँ, अपनी चीज़ें मत छोड़ो। बहुत कम लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, अपने टैलेंट को तो छोड़ो मत। और कुछ लोग होते हैं अरे मुझ में तो कुछ टैलेंट ही नहीं है, गाना तो मुझे गाना ही नहीं आता, नाचना तो मुझे आता ही नहीं है, ड्रॉ तो मुझसे होता ही नहीं है, सीधी लाइन तो मुझसे बन नहीं पाती ठीक से। बट सबकी कोई ना कोई एक हॉबी हो सकती है। प्लीज़ कुछ और सीखना शुरू करो। कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आप सीख सकते होगे, कोई ऐसी चीज़ होगी वो कर सकते होगे आप। सोचो, लोगों से बात करो। हर किसी के पास पोटेंशियल होता है कुछ ना कुछ करने का। गार्डनिंग कर सकते हो शायद आपको कुकिंग में इंटरेस्ट हो, शायद आपकी कोई स्पोर्ट रिलेटेड हॉबी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट हाँ, कोई ऐसा नहीं होता है जिसके पास कोई खूबी नहीं होती है। अभी तक जिसको नहीं मिली है वो अपने आप ढूंढ लो, और जिसको मिल चुकी है वो प्लीज़ अपनी खूबियों को छोड़ो मत। विद दिस वी कम टू आवर लास्ट पॉइंट, एंड विच इज हैविंग wrong notion of independence. So you need to understand what kind of independence is actually required by you. Do you know what? You need independence from FOMO, fear of missing out. अरे मिस आउट होता है, होने दो, तुम लोग उस पर ध्यान दो जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तुम लोग वो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। आपके फ्रेंड्स पार्टीज में जा रहे हैं, आप रात को जल्दी टाइम पे सो रहे हो, सुबह उठ के योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, जो भी करते हो, अपने पे ध्यान देते हो, अच्छा ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल जाते हो, आके पढ़ाई करते हो, अपनी हॉबी कल्टिवेट करते हो, वेरी गुड, गलत नहीं है। जिसको अपनी बर्थडे पार्टी लेट नाइट करनी करने दो, जिसको लेट नाइट स्लीप ओवर्स करने दो, ठीक है। दोस्तियां तोड़ने को कोई नहीं कह रहा है, जिन दोस्तों को साथ रहना होता है वो आपके रहते हैं। बट आपको इंडिपेंडेंस चाहिए फोमो से, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द नोशन, from this thinking that parental guidance is bad, that elderly guidance is bad. No, it is good for you at this age. You need FOMO from the thought that being traditional is you need again independence from the thought that being traditional is wrong. You need independence from this kind of notion. Also, you need independence from a very important notion that if you enter into late 20s or late 30s or 40s or 50s or 60s or 70s or 80s, 90s, it means you're getting buddha. No, this is not buddhapa. Every year of your life, every day of your life, you are younger than ever. You know new things, you know new ways of living life. तो आप उन लोगों की जर्नीज देखो, उन लोगों को अपने इंस्पिरेशन बनाओ जो 70-80 की उम्र में भी ऐसे 20 साल के लड़के लड़की की तरह जी रहे। ऐसे लोग होते हैं, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। वो नॉर्मल लाइफ नहीं है कि मेरे 40 में आते आते घुटने दर्द होने लगे, मुझे ओबेसिटी हो गई। दैट्स नॉट गुड। जो जेन्युइनली इश्यूज से डील कर रहे हैं उनकी बात अलग है, बट जो एक्चुअली अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं वो ठीक नहीं है। नॉर्मल लाइफ है, खुश रहना, आपके आसपास जो चीज़ें अच्छी चल रही है उनको ऑब्जर्व करना, जो बुरा चल रहा है उनको भी ऑब्जर्व करना, उनसे सीखना। किसी के साथ इसलिए बुरा ना करना क्योंकि आपके साथ वो चीज़ खराब हुई थी, बल्कि ये सोचना कि अगर मेरे साथ ये हुआ है मैं इसे किसी और के साथ डेफिनेटली नहीं होने दूंगी। आई एम गोइंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर अदर्स टू लिव, फॉर माई जूनियर्स टू लिव एंड फॉर माई सीनियर्स टू इंटरेक्ट विद मी। तो ऐसे करना है, इस तरह की इंडिपेंडेंस चाहिए। गलत चीज़ों से इंडिपेंडेंस चाहिए, गलत आदतों से इंडिपेंडेंस चाहिए, गलत लोगों से इंडिपेंडेंस चाहिए। ये रियल इंडिपेंडेंस है। अभी थोड़ा थोड़ा लाइफ में डिपेंड होना कम तो करना है एल्डर्स पे, बट पूरी तरह नहीं। डिपेंड होना कैसे कम करना है? लर्न टू डू योर टास्क ऑन योर ओन। अपने खुद को संभालना, खुद सीखना, खुद के छोटे छोटे चीज़ें खुद करना, बट एंटायरली वो जो आपका रॉन्ग नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो छोड़ देना है आपको। तो यही थे वो 10 पॉइंटर्स जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए। अदरवाइज when you will enter your 20s or your 30s, you will feel that I've wasted these 10-15 crucial years of life. वो नहीं करना है आपको। अच्छे से इन सारे पॉइंटर्स को समझना है। ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को बार बार देखना है। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू। ऐसे वीडियोस में और भी बनाऊंगी अगर आप लोग कहोगे तो, बिकॉज अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए हो सकते हैं। विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।